Good morning, everyone. Hope you all are doing well with your studies. So, welcome to our class. So, the question is that which class and on which exam we are going to focus. So, this class is going to be for D plus B exam, TGT English. So, before beginning our class, I want you to know. So, I want to discuss the syllabus prescribed by D plus B for exam. The first section covers Indian classical literature. The second section is European classical literature. Third section Indian writing in English. Fourth British poetry and drama, 14th to 17th century. Then we have fifth section American literature. Then sixth popular literature. Seventh British poetry and drama, 17th and the 18th century. British literature, 18th century. British romantic literature. British literature, 19th century. Then 11th women's writing. British literature is 12th. Then we have modern European drama. Then post-colonial literature. So this is the prescribed syllabus for the plus TGT English. So you can see that the first section covers Indian classical literature, but it doesn't specify. तो इन्होंने कोई भी वर्क हमें ऐसा नहीं बताया कि कौन सा वर्क आने वाला है. As we know that इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में काफ़ी वर्क्स आते हैं, काफ़ी टेक्स्ट्स आते हैं. तो क्या हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी के लिए सारे वर्क्स को रीड करने वाले हैं? तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो फॉर दिस एग्जाम we will focus या फिर we will start by focusing on prescribed syllabus of this section from Delhi University सिलेबस. ओके, सो जितने भी वर्क्स हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं बी इंग्लिश ऑनर्स में, हम वे सारे स्टडी करेंगे थ्रू दिस क्लासेस. ओके, after that once we have completed due syllabus, okay, we will move on to cover the Indian classical literature and other sections as well from IGNOU syllabus. Okay, so let's see what we have in first section in classical literature in due. We have Indian classical literature first paper Kalidas Abhigyanan Shakuntalam. First text. Second text is Vyasa. Then we have Shudraka Mrichigatika. Fourth one is Ilango Adigal, the book of Fancy in Shilapadikaran. Okay, the tale of Anklet. तो कोई भी वर्क करने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो दैट प्लीज़ मेक नोट्स. इन नोट्स आपको इतने ज़्यादा वास्ट नहीं बनाने, प्लीज़ कीप इट शॉर्ट. इससे आपको क्या होगा, लास्ट मिनट में आपको रिवाइज करने में हेल्प होगी. एंड प्लीज़ पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडीज़ करो एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो इट विल हेल्प यू. जैसे कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, तो कोई भी वर्क आप शुरू करने से पहले उसका टाइटल, द राइटर and year, published year, and if there is any translation of this work, so you must know. या फिर कोई उसके ऊपर कोई मूवी बनी हुई हो, ठीक है, अडेप्शन, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. सो in today's class we are going to learn about Kalidas Abhigyanan Shakuntalam. Okay, so let's know about first Kalidasa. सबसे पहले हम कालिदास के बारे में जानेंगे. आई होप यू ऑल नो दैट नवरत्न, अगर आपने सुना हो तो नवरत्न में से एक रत्न कालिदासा थे विक्रमादित्य के कोर्ट में. कालिदासा को इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है. इन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे हैं और उनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है अभिज्ञान शकुंतलम. ओके, इन्होंने 4th सेंचुरी में अपने वर्क्स लिखने शुरू कर दिए थे. ये एक संस्कृत पोइट हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क संस्कृत में हैं. इनके जो वर्क्स हैं मोस्टली बेस्ड ऑन रामायणा एंड द महाभारत स्टोरी. आप देखेंगे कोई भी अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन महाभारत से ही होगा या फिर रामायणा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज है. तो यहाँ से उन्होंने ली और उसके ऊपर अपने प्लेस को कंस्ट्रक्ट किया. ओके, कंपोज किया.
First introduction part is complete, so you must know about the Kalidasas and any writers. This is all about the Kalidasa. Let's move forward. Now the major works of Kalidasa as a poet. Kalidas. First work is Abhiganan Shakuntalam. This is not first work. This is the, we can say, the last work. But yes, as it is the most famous place, तो इसको सबसे ऊपर रखा है. The recognition of the Shakuntala, इसका नाम जो नेम है, other title. It is one of the work, one of the famous, one of the important and the most important work of Kalidasa poet. It is also translated in English language and other languages. Other than this, we have Meghduta, Raghuvamsa, and the Kumar Sambhava. These are Kalidasa's long epic poem. तो उनकी ये 3 long epic poem है. मेघदूता, मेघदूत मीन्स क्लाउड मैसेंजर. जैसे आपको बताया, कभी भी अगर आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को स्टडी कर रहे हो, नॉट ओनली फ्रॉम ड्यू सिलेबस बट अदर लाइक इग्नू यूनिवर्सिटी एंड अदर, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी आप वक्त पढ़ रहे हो उसका अदर टाइटल क्या है इंग्लिश में एंड इन अदर लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल लाइक गोडो, वेटिंग फॉर गोडो, ओके, तो उसका अदर वर्क्स वो फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो उसका टाइटल क्या था. ठीक है, तो यहाँ पे मेघदूता का है क्लाउड मैसेंजर. दूसरा वर्क रघुवंशा. रघुवंशा में क्या है, उनमें एक फैमिली ट्री, सॉरी वेट अ मिनट, okay, Raghuamsa, in which he describes the entire family tree of Raghuamsa starting from Dilipa to Rama. Then we have Kumar Sambhava. Kumar Sambhava में वो birth of Kumar दिखाता है, संभव and the कार्तिक्या. इसके अंदर जो स्टोरीज ऑन द बर्थ हिस्ट्री ऑफ गॉडेस पार्वती. फिर यहाँ पे आता है आपका ऋतु संहारा. ऋतु संहारा मीन्स गैदरिंग ऑफ सीजन्स. यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सीजन्स को डिस्क्राइब किया, तो देर आर 6 सीजन्स. देन वी हैव मालविका अग्निमित्रम. इसके अंदर मालविका एंड अग्निमित्रम की स्टोरी को शो किया गया है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे कालिदासा अभिज्ञान शकुंतलम. तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासा ने लिखी है. ये 7 एक्ट में लिखा गया एक प्ले है और ये प्ले संस्कृत प्ले है. इफ वी talk about that, originally written in Sanskrit. Okay, ये composed हुआ था between 1 BC and 400 AD. और ये कह सकते हैं कि शायद फर्स्ट प्ले इंडियन प्ले है जो वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड किया था. ट्रांसलेट किसने किया, विलियम जोन्स ने किया था 1789 में. आफ्टर दैट जो हम इस टाइम पर रीड कर रहे हैं वो हम पढ़ते हैं ड्यू में कालिदासा द लूम ऑफ टाइम. ओके, कहीं ना कहीं टाइम का इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. ट्रांसलेटेड बाय चंद्रराजन, पेंगुइन पब्लिकेशन है एंड 1989. ओके, ईयर को आपको याद रखना है. अब यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम की जो स्टोरी है वो रिवॉल्व्स अराउंड द किंग दुष्यंता, जो एक आदि पर्व से पुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, महाभारत से लिया गया. एंड द अदर शकुंतला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले. ओके, सो जो कालिदासा है उन्होंने इस स्टोरी को एक एलिगेंट पीस ऑफ आर्ट में चेंज कर दिया. इसके अंदर जो थीम्स है वो है लव, पैशन, रीयूनियन एंड द सेपरेशन. ओके, अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. तो यहाँ पे इनको जो भी कैरेक्टर्स चूज किए हैं, वैसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं पर मैंने कुछ ही कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है, और वो भी इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द प्ले. तो सबसे पहले सूत्रधारा. सूत्रा मीन्स क्या होता है, सूत्र मीन्स धागा. तो सूत्रधारा इज अ पर्सन हु थ्रेड द प्ले, मतलब जो एक पूरे प्ले को एक साथ जोड़ के रखता है. फिर किंग दुष्यंता. किंग दुष्यंता हीरो है इस प्ले के. इसको आप नायक भी बोल सकते हो, हीरो बोल सकते हो, या फिर प्रोटेगनिस्ट बोल सकते हो. ठीक है, ये प्रूव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. देन वी हैव सूता. शकुंतला. शकुंतला हीरोइन है, नायिका एंड अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सेज कानवा. कानवा. आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो शकुंतला है उन अडॉप्ट किसने किया था, सेज कानवा ने किया था. पर ये रियल डॉटर किसकी है, मेनका, अ सेलेस्टियल निम्फ एंड विश्वामित्रा, अ सेज. ओके, देन वी हैव अनुसुईया एंड प्रेमवदा. अनुसुईया एंड प्रेमवदा आर फ्रेंड्स ऑफ शकुंतला एंड द कंपेनियन. ये हमेशा इनके साथ रहते हैं. फिर उसके बाद वी हैव माधवया के कोर्ट जेस्टर है. जैसे कोर्ट जेस्टर इंपॉर्टेंट होता है शेक्सपियर के प्लेस में, हर एक प्लेस में एक जेस्टर जरूर मिलेगा आपको. उस हिसाब से आपको यहाँ पे याद रखना है कि ठीक है, फर्स्ट प्ले
में कौन जेस्टर था, कालिदास था। ठीक है, कानवा, कानवा कौन है, हेड ऑफ हर्मिटेज है, द फोस्टर फादर ऑफ शकुंतला। देन वी हैव दुर्वासा, दुर्वासा का इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जैसे जैसे दुष्यंता, शकुंतला, कानवा, दुर्वासा। दुर्वासा एक सेज है जो हॉट टेम्पर्ड है, और इन्हीं की वजह से कि इतना ज्यादा वाइंटली रिएक्ट किया इन्होंने कि इनको ये कर्ज कर देता है शकुंतला को। देन वी हैव विदूषका, ये क्लोज कंपेनियन है किंग दुष्यंत के। मेनका आपको बता दिया है कि शकुंतला की मदर है मेनका, एंड इनके फादर कौन है, विश्वामित्रा। गौतमी, शकुंतला इनकी टेक केयर में ही रही है कानवा की सेज में, सीनियर एसेटिक्स है। देन वी हैव संग्रवा एंड द सरदावता, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी दोनों क्या है, कंपेनियंस। ठीक है, अकम्पनी शकुंतला टू द कैपिटल, जब शकुंतला दुष्यंता के किंगडम में जाती हैं तो ये साथ में उसको अकम्पनी करते हैं। देन वी हैव फिशरमैन, फिशरमैन एक पुअर फिशरमैन है, इसी को शकुंतला की खोई हुई रिंग मिल जाती है बैली और इन अ बैली ऑफ फिश। ठीक है, वहां से उसको सस्पिशन पे कि भाई इन्होंने चोरी किया, वहां से उनको किंग दुष्यंता के पास ले जाते हैं। देन वी हैव डोर कीपर, यहाँ पे आपको ये इसलिए लिखा है कि मोस्टली डोर कीपर मेल्स होते हैं, पर यहाँ पे फीमेल अटेंडेंट है ये। देन वी हैव, आपको जस्ट शुरू में बता दिया है कि ये एक 7 एक्ट संस्कृत प्ले है, तो यहाँ पे 7 के 7 एक्ट के नाम है। द चेज scene first, then second one is concealment of the telling, third one is love's fusion, fourth one is Shakuntala's departure, fifth one is the repudiation of Shakuntala, separation from Shakuntala, Shakuntala's prosperity. Okay, जैसे आपको बताया अभी कि कोई भी वर्क आप करते हो तो वहाँ पे चीज़ें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। सो सी, फर्स्ट यू नो द अबाउट राइटर, character, theme, and about writer, character, theme, title. Okay, डिफरेंट टाइटल्स, अगर वहाँ पे कोई भी डिफरेंट टाइटल है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अदर देन दिस यू मस्ट नो द अडेप्टेशंस, लाइक मूवी पे कोई भी अडेप्टेशंस है या नहीं है वो आपको याद रखना है। ओके, अब इसकी स्टोरी रह जाती है, वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मैंने उसकी समरी ऐड नहीं की है। इफ़ यू वांट मी टू ऐड द समरी आई विल, ओके, इन डिटेल। यहाँ पे 7 एक्ट्स हैं। शुरू होती है कि किंग दुष्यंता है, वो एक हंटिंग पे निकला हुआ है, वो डियर को चेज करा है, तो पेपर में डियर की जगह एंटीलोप वर्ड आ सकता है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करके रखें कि एंटीलोप। जब दुष्यंता एंटीलोप को चेज कर रहे होते हैं तो वहीं पर हर्मिट से 2 पीपल आते हैं, वे कहते हैं कि प्लीज़ आप इस डियर को छोड़ दीजिए, इस डियर को आप चेज ना करें क्योंकि ये डियर आश्रम को बिलोंग करता है। इनके कहने पर दुष्यंता मान जाता है, वे कहते हैं कि ठीक है। और जब वो उसको ऐसे देखते हैं तो हर्मिट्स बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ पर आइए, ऑल दो जो हमारी हर्मिटेज के जो सेज हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो सोम तीर्थ पर गए हुए हैं, लेकिन हाँ उनकी बेटी यहाँ पर है शकुंतला, ही विल होस्ट यू। किंग दुष्यंत जो है वो मान जाते हैं, वे कहते हैं कि आई विल बी देयर। तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने पर देखते हैं कि वहाँ पे कोई 3 लड़कियां हैं, वे फ्रेंड्स आपस में खेल रही हैं, या फिर जो उनकी दोस्त हैं किसी एक लड़की शकुंतला है जो उनको टीज कर रही है। वहाँ पे टीज करने में शकुंतला की दोस्त अनुसुईया और प्रेमवदा के साथ साथ एक बी भी है, बी वी कैन से मधुमक्खी और मक्खी, तो वो भी उनको परेशान कर दिया। परेशान करने पर जब वो शकुंतला एकदम से चिल्लाती है कि प्लीज़ हेल्प मी, तो तभी दुष्यंता आ जाते हैं, वहाँ पर उसकी हेल्प करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं शकुंतला की ब्यूटी को देखकर, और वे चाहते हैं कि वो उसको वाइफ बना ले। पर बिफोर दिस वे श्योर करना चाहते हैं कि क्या ये एक क्षत्रिय फैमिली की वाइफ एज अ क्लैन में आ सकती है एज अ वाइफ। और तो जब पता चलता है, वो वहाँ पे एज अ नोबल मैन गए हुए होते हैं, वहाँ पे किंग की तरह नहीं गए हुए, तो जाने पर उन्हें पता चलता है बात करने पर कि जो ओरिजिन है शकुंतला का वो एक मेनका है जिनकी वे डॉटर है, एंड द विश्वामित्रा। तो वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है, नाउ आई कैन मैरी दैट गर्ल। शकुंतला भी फैसिनेटेड होती है दुष्यंत को देखकर, और वो चाहती है कि वो उनके पास रहे, उनके बारे में जाने। ओके, फिर उसके बाद में तभी वहाँ पर एक एलिफेंट आ जाता है, वो सारे में डिस्टर्ब कर देता है। फिर वो दुष्यंता कहता है कि जब तक यहाँ पर रिचुअल्स किए जाते हैं वी विल प्रोटेक्ट द आश्रम्स एंड द ड्वेलर्स।
अब सेकंड एक्ट में क्या होता है, वो वहाँ पे रुक जाते हैं। अब वो दुष्यंता लव सिक हैं, अदर साइड शकुंतला भी उनके बारे में सोच रही है, पर वो अपने दोस्त माधविया को बता, चेस्टर को बता भी रहे होते हैं कि ठीक है वो लड़की है, मुझे उनसे मिलना है, ये सब चीज़ें। तभी उनकी मदर के यहाँ से एक मैसेज आता है कि आपको बुलाया गया है, वहाँ पे कोई रिचुअल है, उसको परफॉर्म करना है। तो लेकिन यहाँ पे किंग दुष्यंत होते हैं वे भी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि यहाँ पर वो तब तक रिचुअल रहेगा जब तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसमें बीच में एक डिलेमा आ जाता है कि वो इसको कैसे पूरा करे। तो वे अपनी जगह माधवा को भेज देते हैं, और माधविया को जब वो भेजते हैं तो वो ये भी कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, जो मैं अब तक उस लड़की के बारे में बात कर रहा था उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मजाक है, ताकि वो र्यूमर ना फैले। उनका मतलब ये था, वे चाहते, ऐसा नहीं था कि वे उसकी तरफ फैसिनेटेड नहीं थे या सब मजाक है, पर वे फिर भी बोल देता है। माधवी मान जाता है और वहां चले जाता है। माधवी कहता है कि ठीक है, आई विल परफॉर्म द रिचुअल्स, क्योंकि जो दुष्यंता की मदर थी वो माधवी को भी एज अ सन ट्रीट करती थी। ओके, तो दुष्यंता यहाँ पे आराम से रहते हैं, उस जितना भी वहाँ पे रिचुअल्स वगैरह रहता है उसका ध्यान रखते हैं। अब थर्ड एक्ट में क्या होता है, अब दोनों के दोनों ही क्योंकि लव सिक हो चुके हैं, शादी के लिए भी होता है कि ठीक है वे जा रहे हैं, तो एज अ रिवर ऑफ बैंक पर जाते हैं, वहाँ जाके बात होती है। दोनों मान भी जाते हैं, प्रियमवदा एंड अनुसुईया कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने एक दूसरे से कन्फेस तो कर लिया है, पर आप बताइए हमारी दोस्त की क्या स्टेटस क्या रहेगा। तो बताते हैं कि मेरी जो लाइफ में दो ही विमेंस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, या तो मदर अर्थ, जो मदर अर्थ है, या तो उनकी या फिर शकुंतला। तो इस चीज़ को सुन के उनके दोस्त भी ठीक है श्योर हो जाते हैं, और वो उनको वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तभी वो उनके लिए गंधर्व मैरिज को प्रपोज करते हैं। ओके, इस चीज़ को आप याद रखना, गंधर्व मैरिज। अब वे दोनों के दोनों, उनकी शादी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि एज एक्स्ट्रा विजन होता है कानवा के पास में, जो हरमिटेज सेज होता है, अडोप्टेड फादर शकुंतला के, तो उनको भी पता चल जाता है कि ठीक है वहाँ पे उनकी शादी हो चुकी है, और ठीक है वे साथ में रहते हैं। अब दुष्यंता शकुंतला को प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है अब मुझे जाना होगा अपने किंगडम में, पर हाँ मैं जल्दी ही आपको लेने भेज दूंगा। ओके, अब लेने भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले जब शकुंतला उनके बारे में सोच रही होती है, तभी उनके डोर पर सेज दुर्वासा आ जाता है। ओके, द नेम ऑफ द सेज वॉज दुर्वासा। ओके, सो दुर्वासा आते हैं, दुर्वासा आके उनको बताते हैं, पर शकुंतला उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाती कि यहाँ पे कोई आया हुआ भी है। अब इस चीज़ को देख के सेज एंग्री हो जाते हैं, और वो उनको कर्स कर देता है कि जी जैसे तुम किसी की, जिनकी थॉट्स में तुम खोई हुई हो, वही तुम्हें पहचानने से मना कर देगा, लेकिन ही विल नॉट रिकॉग्नाइज यू, जिसके लिए तुमने ये मेरा अपमान किया है। ऐसे करके उनको इंसल्ट फील होती है इस चीज़ को लेके। लेकिन जैसे ही पता चलता है वो रोने लगती है शकुंतला, पर जो अनुसुईया प्रेमवदा होते हैं वहाँ जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, शकुंतला ऐसी, वो तो सबको हॉस्पिटैलिटी के लिए ही इतनी ज़्यादा जानी जाती है, उनके फादर कानवा है। पर दुर्वासा बोलता है कि मैंने कर्ज दे दिया, अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता, पर हाँ ठीक है, जैसे आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, आई कैन डू वन थिंग, कि अगर आप कोई टोकन शो करते हो एज अ टोकन ऑफ लव और मोमेंटो ऑफ लव, तो यस, जो दुष्यंता किंग है वो उनको पहचान लेंगे। अब इस चीज़ को सुनकर उनको ठीक लगता है, फिर कुछ टाइम आता है, ये चीज़ बीत जाती है। फिर कुछ टाइम आता है जब शकुंतला प्रेग्नेंट होती है, तो ठीक है खानवा वापस आता है और कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, आपकी विदाई कर देता है। तो उनके साथ में गौतमी एंड उसके श्रृंग, द नेम ऑफ टू अदर टू अटेंडेंट, हाँ जी, श्रृंगरवा एंड द सरदवता, दोनों डिसाइपल उनके साथ जाते हैं। जाने पर वहाँ जाते हैं आप किंगडम में, तो वे कहते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है। जब शकुंतला का वो घूंघट ऊपर करता है, दुष्यंतों को लगता है कि लाइक शी इज़ ब्यूटीफुल, वो फैसिनेटेड भी होता है उसकी ब्यूटी की तरफ, पर वो कहते हैं कि आज ये पहले से ही प्रेग्नेंट है, किसी की वाइफ है, तो मैं तो नहीं रख सकता ऐसे। इसके कहने पर वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं पहचानता, वहाँ पे सबका यही रिएक्शन होता है, तो वे वहाँ से चली जाती है। जाने पर वो, जाने से पहले वो उनसे कहते हैं कि ठीक है आप दिखाओ, तो नहीं याद आता है कि अच्छा कोई रिंग, मुझे रिंग दी थी, तो एक किंगडम की रॉयल रिंग होती है, तो उसने कहा कि मैं ये दिखा देती हूँ, पर देखती हूँ तो पता चलता है कि शायद वो रिंग तो स्लिप हो गई रिवर में, जब वो वहाँ पर नहाने के लिए गई थी। अब उसके पास वो भी नहीं होती, कुछ टाइम बीत जाता है, वो वहाँ से चली जाती है।
फिर जब एक फिशरमैन होता है, वो फिश वहाँ से कैच कर रहा होता है, तो पता चलता है उसकी जो वाइफ होती है फिशरमैन की, जब वो फिश को कट कर रही होती है, उनके अंदर से एक रिंग मिलती है। अब ये मिलने पर वो पुलिसमैन के शो करता है, पुलिसमैन सोचता है कि इसने चोरी किया है, तो फिशरमैन को किंगडम में ले जाते हैं। वहां जाके पता चलता है, जैसे ही वो रिंग को देखता है तो एकदम दुष्यंत को सब याद आ जाता है। फिर वो रिग्रेट फील करता है कि ये क्या कर दिया मैंने, पर ठीक है, वो उसके हाथ में नहीं था, कंट्रोल वाली चीज़ नहीं थी ना, तो उसको छोड़ देता है। उसको इनाम भी मिलता है। फिर उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। देन कुछ टाइम बाद वहाँ पे किंगडम ऑफ इंदिरा, आई थिंक, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ उनको एक छोटा बेबी नज़र आता है, बॉय, जिसका नाम भारता होता है। वो एक लायन कप के साथ खेल रहा होता है, जो देखने पर बिल्कुल दुष्यंत की तरह फील लग रहा होता है, दिख रहा होता है, मीन्स रिजेम्बलेंस सेम सेम होती है। जाने के बाद में जब वो उस बेटे के पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप कहाँ से हो, तो बताते हैं कि पुरु डायनेस्टी से बिलोंग करता है, द मदर नेम इज शकुंतला। तो वहाँ पे वे सबके सब रिकनसाइल करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और फिर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है इसकी। अब क्योंकि ये सब चीज़ होता है, तो शकुंतला भी माफ़ कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये दुष्यंत के हाथ में नहीं था, जो कर्स वाली चीज़ थी, और उन्होंने कुछ भी जान पूछ के नहीं किया, जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप यू understand the whole story of the play. I tried. This is first video. It can be a little fuzzy, but I assure you that next video will be more systematic than this and organized. So, thank you. Have a nice day.